So in our front, this is Todaiji Temple. बहुत बड़ा गेट दिया है. So guys, welcome to Todaiji Temple, which is very famous in Nara as well in Japan. So we are here in front of the Todaiji Temple, and this temple is a Buddhist temple, and this temple is a famous temple in Nara, and Nara is a famous tourism place in Japan. And this massive building houses one of the Japan's largest bronze statue of Buddha, and the 15 meters tall Buddha here. So let's come and see with us. टर्टल भी है, फिशेस भी हैं. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want. तो हमें यहाँ पर एक इंग्लिश गाइड मिल गए हैं, तो उनके साथ हम थोड़ा विजिट करेंगे और वो हमें बताएंगे इस टेंपल के बारे में. I went to Goa. Okay. He went to India 16 times. So he went to India multiple times, but only in Mumbai and Goa. Okay. Great. This is the Buddhist temple. Buddhist came from India, your Yeah. country. Yeah. Right? Buddhist was founded in India by Shakyamuni Buddha and 500 BC. Spread to China, in Korea, then introduced into Japan. Japan. Yes. 6th century, only 6th century. And you know, this approach show the root. And you can see the central stones. The central stones came from India. Oh, really? Really nice. Oh, And the nice. stones on its left side and right side came from China. इनका बताना ये है कि ये जो स्टोन्स हैं बीच के सेंटर स्टोन्स, ये इंडिया से यहाँ पर आए हैं जापान में, और ये आए हैं कोरिया से, और ये आए हैं चाइना से. तीनों स्टोन्स का कलर अलग अलग है. This came from India. इंडिया, this one. Yes, And I told. you can see the two gold ornaments. Yes. That is called shibi. Shibi or fishtail. Shivi. Okay. Shibi or fishtail. That one, Yeah, the which golden is on the top, Yes. golden one. And Yes. they are placed on the roof ridge as ridge. ornamental charms against fire. Oh. Since fish live in water, they are believed to sprinkle water over the building and protect it from fire. Okay. And Great. this is shibi. Shibi, fishtail ornamental Fishtail. charm. It's the same length between the two gold ornaments. Really? Yes, that's right. This इनका one, कहना this one. इनका You're कहना right? ये है, टॉप पर जो आप फिश टेल देख रहे हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर डिस्टेंस है, Yes, and और distance इतनी between ही the- डिस्टेंस है इसकी जो This- एंट्रेंस this- पाथ this- बनाया है इन्होंने. approach. ये जितना स्टोन वाला एरिया है, ये यहाँ से और वहां तक, ये पूरा किसके बराबर है? वो जो ऊपर फिश टेल है उसके बराबर. 17 मीटर का वो है और 17 मीटर का ये एंट्रेंस पाथ बनाया है इन्होंने. That building is the main temple of Todaichi, and Okay. we call the Daibutsuden in Japanese. Daibutsu. Daibutsuden.
Largest Buddhist building in the In world. the world. And Okay. of course, national treasure. Yeah. And Of course. Todaiji was designated as the World Heritage. National World Heritage Site. ये वर्ल्ड हेरिटेज उसको बताया गया इस बिल्डिंग को 1988 में. And the building measures about 50 meters in height. 50 meters in and height. 57 meters in width. Okay. And 50 meters in depth. Wow. Oh. Built about 300 years ago in Edo period. Just only 300 years. 300 years. Okay. But still largest. Yeah. August of 15 or August 15, during the Obon festival. Obon is the festival for deceased. okay. August 15 and न्यू ईयर में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसकी विंडो 2 times in a year ओपन करते हैं. 14 years. Yes, that's the oldest, largest, and the finest bronze lantern in the world. Of course, national treasure. That's a treasure. Okay. Shall we show? So this is the lantern. Lantern. And the bronze. This is the bronze lantern. So the bronze lantern, which is 1300 year old, and that is the largest, finest, oldest lantern of the world, and this is the national heritage of Japan as well. ये स्टैचू है सैंट पिंडोला का. इनको बुद्धा जी ने बोला था कि आप बाहर बैठ जाइए, तो ये टेंपल के बाहर बैठ गए थे. इनकी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी या फिर आप गूगल करेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा. कुछ ऐसा था कि इनको बाहर बैठा दिया गया था, ये बाहर बैठ गए थे, लेकिन इन्होंने भी बहुत सेवा की लोगों की. तो कहा जाता है कि जैसे कि किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, इनके शरीर को टच करके मतलब वो बीमारी हमारे मतलब शरीर से दूर हो जाती है, ऐसा मानना रहा है. तो लोग पहले आते होंगे, इनको टच करते होंगे कि लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए. मतलब परेशानी मतलब जो उनके शरीर में अगर कोई रोग है तो. लेकिन अभी ये देखिए कोविड की वजह से यहाँ पे बंद कर दिया गया है, तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं जा सकता. यहीं से इनके दर्शन होंगे. कई बार अटैक्स हुए, टेंपल में रिकंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन ये जो लैंटर्न दिखाई थी आपको यहाँ पर, ये तब से वैसी की वैसी है, इसे चेंज नहीं किया गया. चलते हैं. बहुत अच्छे बुद्धा जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली. और अभी पहुँच चुके बहुत दूर और मुझे देख के चल रहे उल्टा ताकि मैं उनको देख सकूं. आपको दिख रहे हैं वो वाइट टी शर्ट में. चलिए दिखाना. कुछ छोटा छोटा होना चाहिए ना. ये आपकी काफ़ी वेटेड है. ये पूरा टेंपल का, बुद्धिस्ट टेंपल का भी और नारा का भी यहाँ पर, मतलब नारा पार्क का भी यहाँ पर डियर भी है. और ये पूरा ओसाका का, ओसाका मतलब नारा का, नारा पार्क का पूरा दिया हुआ है. हाँ ये पूरा नारा पार्क का दिया हुआ है. काफ़ी वेटेड है देखो. हाँ रियली यार, टू मच वेटेड. है ना. अच्छा खासा. और भी कुछ दिया है. एक और लिया, वो भी अच्छा. छोटी छोटी चीज़ों को कहीं भी आप जाते हो तो कैरी करना भी आसान रहता है ना. फिर यहाँ पे ऐसी चीज़ें थी. अरे वाह, वन इज सिल्वर वन इज गोल्ड. हाँ आपने देख ही लिया.
हैप्पी वंडरलैंड और इधर नारा है मेंशन है, इसीलिए मैंने लिया। हम आ गए हैं क्योतो सिटी और हमें जाना है अपने होटल। तो यहीं कहीं हमारा स्टेशन के पास ही होटल दिखा रहा है। अभी हम उसी की तलाश में हैं। एक राउंड हमारा हो गया है ढूंढते ढूंढते स्टेशन के पास की जगह का। अभी पता नहीं कितने राउंड हमारे होने बाकी हैं। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। Only 60 meters. I don't know where to go. पूरे होटल्स को छोड़ के पीछे जितने होटल्स थे यहाँ पर आकर हम खड़े हुए हैं। यहाँ स्टेशन के जस्ट बाहर। यहाँ इस लड़के को कौन सा होटल मिलेगा। यार ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। एंटर करती है सामने सीइंग इस तरीके से। वर्किंग टेबल अच्छी दे रखी है। अच्छा है। Different one यार। इधर वॉशरूम। इधर वॉशरूम है। इधर आपका लाइट ऑन करना रवि। bathroom। बंद कर दो आप लाइट। Not open। मैं फेस वॉश करूँगी, आप मुझे देख सकते हो। चलिए आप लोगों से चेंज करके, नहीं चेंज क्या करना है, अभी तो मैं बाहर क्योतो स्टेशन के आसपास घूमना है ना। मुझे इस होटल रूम की एक बात बहुत अच्छी लगी। जैसे ही हमने कर्टन हटाया, विंडो बहुत बड़ी दे रखी है और विंडो से सनरेज एंट्रेंस गेट तक आ रही है। और अभी रवि तो रेस्ट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा टीवी वगैरह देखने लगी थी, लेकिन हम लोग बाहर निकलेंगे जल्दी ही और आसपास घूमेंगे। और मैं आपको इतनी बात करने के बाद ये तो दिखा दूं कि विंडो से धूप आ कैसे रही है, कहाँ तक जा रही है सनरेज। ये देखिए, ये यहाँ से ये रहा स्टेशन, क्योतो स्टेशन, और ये है सामने का व्यू। और ये देखिए, यहाँ तक सनरेज आ रही है। ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ तक सनरेज आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है इस होटल के अंदर, अच्छा लग रहा है। तो हमारा प्लान ये था कि हम क्योतो स्टेशन के आसपास का विजिट करेंगे, लेकिन सडन प्लान चेंज हो गया और रवि ने बोला चलते हैं फुशमी इनारी श्राइन, क्योंकि कल है बारिश, तो बारिश में यहाँ घूमना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आएंगे तो, लेकिन उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं। जस्ट हम यहाँ स्टेशन से बस एग्जिट लेने ही वाले थे, तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया। वाह, तो बड़ा खूबसूरत है। तो जो लोग भी जापान में क्योतो आते हैं घूमने के लिए, वो इस श्राइन में ज़रूर आते हैं।
बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है रवि। मेरा मन कर रहा है मैं कैमरा बंद कर दूं और आंखों से बस देखती रहूं। बहुत सुंदर लग रहा है, क्या बोलूं। अब यहाँ पर शांति से एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी देखिए कितने सुंदर यहाँ के मंदिर होते हैं। वाह, ये मैं आपको बता रही थी, ये चीज़ सबने देखी होगी। अगर जापान के बारे में या टूरिज़्म प्लेस के बारे में आपने देखा होगा तो ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, और मैं आपको एक्चुअल में दिखाती हूँ। ये लगातार श्राइन के डोर्स हैं बहुत दूर तक, बहुत सुंदर लगता है ये। Those are small one. वाह यार, देखिए मैं इसको टच कर सकती हूँ, ये छोटे हैं श्राइन के गेट, मतलब ऐसे भी नॉर्मल भी ऐसे भी टच कर सकती हूँ। ये थे श्राइन गेट, इसी से हम बाहर आए हैं, और यहाँ पर भी ये श्राइन है। now new detail of this time. बहुत अच्छा लगा, और कैमरा हटा दो तो उसके बाद हमने एक बार फिर से एंजॉय किया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जगह है, और अभी हम वापस जा रहे हैं। और अच्छा हुआ कि आते वक्त हमने शूट कर लिया था, जाते वक्त अब हो रहा है धीरे धीरे डार्क। हाँ, ऐसे हम गए थे, घूम के वापस आ गए। तो चलिए बंद करते हैं अभी वीडियो को फ़िलहाल के लिए। और बहुत सुंदर जगह है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। श्राइन तो बहुत हैं, खासकर क्योतो में श्राइन ही श्राइन है, लेकिन ये श्राइन सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस। यस यस।